اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں سے سورہ نساء 4واں پارے کا شروع ہوتا ہے۔ سورہ نساء کا معنی عورتوں کے بارے میں بہت سے باریک بھی مسئلہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا، اور بھی بہشت جور میں اور بھی باریک مسئلے بتلائے گئے۔ یہ سورہ کے معنی پڑھنے میں میں پہلے ہی معافی مانگتا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں، کہیں غلطی نہ ہو جائے مجھ سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑے رحم والے ہیں۔ اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو جسے تم کو ایک جاندار سے پیدا کیا۔ کس سے؟ آدم علیہ السلام سے، اور اس جاندار سے اس کا جوڑا پیدا کیا۔ اسی آدم علیہ السلام سے اس کا بائے فصلی سے عورت کو پیدا کیا۔ بائے ہاتھ کیا ہوتا ہے؟ کمزور ہوتا ہے۔ دہنے ہاتھ کیا ہوتا ہے؟ طاقتور ہوتا ہے۔ بائے فصلی کی ہڈی سے دادی ماں ہوا کو بنایا، اس لیے عورت اپنی طاقت سے کمزور ہے، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلائے، دنیا بڑھ گئی ان دونوں سے۔ اس کے بعد میں نوح علیہ السلام کے زمانے میں بڑا سے بڑا طوفان آ گیا۔ آدم علیہ السلام سے لے کے نوح علیہ السلام کے زمانے تک جتنے بھی آئے، سبھی آدمی وہ سیلاب میں ڈوب کر مر گئے۔ جو نوح علیہ السلام کے بعد میں جو کشتی میں تھے، اس سے یہ دنیا آباد ہوگی۔ یہ آپ کو ملے گا قصص الانبیاء میں آپ کو بتلا رہا ہوں اس لیے۔ اور تم خدائے تعالیٰ سے ڈرو جس کے نام سے ایک دوسرے سے مطالبہ کیا کرتے ہو، اور قرابت سے بھی ڈرو، با یقین اللہ تعالیٰ تم سب کا اطلاع رکھتے ہیں۔ دیکھو، تم سب کا خبر رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ جیسا ٹیچر ہوتا ہے، کتاب لے کے پڑھتا ہے ایک کے نام، وہ حجیر 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 کر کے بولتا ہے، تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ تم کہیں جنگل میں بھی ہو، کہیں گھروں میں بھی ہو، کہیں ملک میں بھی ہو، کہیں بھی ہو، اللہ تعالیٰ تمہارا چلنا پھرنا رہنا سب تک کا خبر رکھتا ہے۔ تم کو ایسا ہی پیدا کر کے دنیا میں نہیں بھیجا، اس کا مطلب ہے۔ اور جن بچوں کا باپ مر جاوے، اس کے بعد میں مسئلے آتے ہیں، اور جن بچوں کے باپ مر جاوے ان کے مال انہی کو پہنچاتے رہو، اور تم اچھی چیز سے بری چیز کو مت بدلو، اور ان کے مال مت کھاؤ، اپنے مالوں کے رہنے تک ایسے کارروائی کرنا بڑا گناہ ہے۔ جس کے بچے ہے ان کے ماں باپ اس کے بچپن میں مر گئے، تو بچوں کو مال کو تم مت کھاؤ۔ تمہارے مال ہونے کے بعد بھی تو ہمارے مال کو چھپا کے وہ بچے کے مال کو کھائیں گے۔ ایسا کرو کہ وہ بچوں کو نہیں معلوم ہے نا، چھوٹے بچے، اس طریقے سے غلط کام مت کرو۔ اپنے مالوں کے رہنے تک ایسے کارروائی کرنا بڑا گناہ ہے۔ اور اگر تم کو اس بات کا اعتماد ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے، تو اور عورتوں سے جو تم کو پسند ہو نکاح کر لو، 2 عورتوں سے، اور 3 عورتوں سے، اور 4 عورتوں سے۔ دیکھو یہاں پر میں انگلی دکھا کے بتا رہا ہوں، 4 عورتیں بتایا، تو 1 عورت کرنا، 2 عورت کرنا، 3 عورت کرنا، 4 عورت کرنے کا کوئی مسئلہ ہے؟ وہ اپنا مرضی سے قرآن میں بتا دیا ہم 4 عورتوں کو کر سکتے ہیں، کر کے ایک کو شادی کر دیا، اس کو چھوڑ دیا، وہ اپنے بچوں کو پالتی ہے، اور دوسرے کو کر دیا، اس کو چھوڑ دیا، وہ اپنے بچوں کو پالتی ہے، تیسرے کو کر دیا، اس کو چھوڑ دیا، وہ اپنے بچوں کو پال رہی ہے، اور چوتھے کو کر دیا اور اس کو یہ کر دیا، وہ اپنے بچوں کو پالتی ہے۔ بس تم مرد مانا کر کے اتنا ان کے اوپر ظلم نہیں کرنا، اس کا بھی ایک ریتی رواج ہے۔ اگر تم 4 کرنا چاہتے ہو تو 4 کو ایک نظر سے دیکھنا۔ کئی جیسا پلٹا ہوتا ہے، دیکھو، ایک طرف بھائی کے جی کا پتھر ہوتا ہے، دوسرے طرف 1 kg کے ٹماٹر ڈالتے ہیں، برابر کا وزن ہوتا ہے، تو وہ اس کا پیسہ لے کے وہ دے دیتا ہے۔ ان 4 میں تم برابر کا نظر رکھتے ہو تو صحیح، ورنہ تم غلطی میں ہو۔ بس اگر تم کو اعتماد اس کا ہو کہ عدل نہ کرو، دیکھو ابھی بھی میں بتا، عدل انصاف نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بی پر بس کر دیو۔ دیکھو اس آیت کو لے کے میں انگلی رکھ کے بتا رہا ہوں، دیکھو یہ عورتیں 4 عورتوں کے بارے میں بولا کر کے مت ناچو۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں پہلے مرد مانے کو ڈرایا، تو اپنے نگاہ نیچے رکھو، اس کے بعد میں عورت کو
डराया सूरह नूर में। अगर तुमको एहतमाद इसका हो कि अदल ना कर सकोगे तो फिर एक ही बीवी पर बस करो, या जो लोंडी तुम्हारी मुल्क में हो वही सही। इस अमर मज़कूर में ज़्यादती ना हो, नेकी तो का करीब तर है। और तुम लोग बीवियों को उनका महर खुशी दिल से दे दिया करो। महर देना फ़र्ज़ है। देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, महर देते हैं औरत को। जब महर देते हैं औरत को, ये पेजी नंबर भी दिखा रहा हूँ मैं आपको, वो महर फ़र्ज़ है। ये जो लेन देन होता है, देखो कटनम बोल के लेन देन होता है, वो तुम्हारा गलत फहमी है। उसमें भी औरत का हिस्सा है जो आगे बढ़कर आएगा माँ बाप के जायदाद में, वो उसी तरीके से देने से हम कुरान के साथ चलने वाले बनेंगे। आज क्या करते हैं कि माँ बाप का जो माल है उसमें औरत का माल कितना है, मर्द बेटे का माल कितना है, उसका हिस्सा बना के उस औरत को देना एक करीब तर है। ये अल्लाह का हुक्म है। आजकल हम क्या करते हैं कि तो हम वाम लाकर भी क्यों ना हो हमारी बेटी अच्छी तरीके से जीती बोल के हम क्या करते हैं कि हमारे ताकत से बढ़कर वो वाम लगा के क्यों ना हो हम क्या करते, कटनम दे के शादी करते। ये गुनाह है, देने वाले के ऊपर भी गुनाह है, लेने वाले के ऊपर भी गुनाह है। लेकिन उसमें क्या है, महर खुशी दिल से दे दिया करो। महर देना फ़र्ज़ है। अगर तुमको महर देने के पास कुछ भी नहीं तो कुरान का एक सूरा सिखा दो, फिर भी काफ़ी है। आज तो कोई इतना फ़कीर तो नहीं कि महर भी नहीं दे सके, जैसे कि 5,000 या 2,000 या 3,000 वो गांव का रिवाज है। अगर ये भी नहीं दे सकता है तो कुरान का एक सूरा सिखाने से भी काफ़ी हो जाता है। जैसा कि बहिश्त जेवर में आपको और भी इसका बारे में, इसलिए मैं पहले ही बता दिया, इस सूरा के मानी में मुझसे जो गलती होते तो मुझे माफ़ कर देना। तो महर फ़र्ज़ है। उसके बाद में औरत के घर में जाके खाना 100 आदमी 500 आदमी ले जाके, वो गलत है। तुम वलीमा करो, वलीमा तुम पर वाजिब है। हाँ, अगर वह बीबी आप खुशी दिल से छोड़ दे तो तुमको इस महर में का कोई जजा, तो तुम इसको खाओ मज़ेदार और खुशगवार समझ कर। अगर उस औरत ने अगर तुमको उस महर में अगर उसको तुमको उल्टा फिर के दे दिया तो तुम खुशगवार करके उसको खा सकते हो और शुक्र समझ करो। तो तुम उसको खाओ मज़ेदार और खुशगवार समझ कर। और तुम कम अकलों को अपने वह माल मत दो जिनको खुदा ताला ने तुम्हारे लिए मायाना जिंदगानी बनाया। तुमको जो माल दे के दुनिया में भेज दिया वो माल कम अकल वालों को दे के बर्बाद मत हो जाओ। अपने उस माल से अपना ज़िंदगी बसर करो दीन इस्लाम के साथ। और उन मालों में से उनको खिलाते रहो, पहनाते रहो और उनसे माकुल बात कहते रहो। देखो घर वालों के बारे में देखो कितना प्यारा लफ्ज़ अल्लाह ताला ने फरमा दिया, तुम्हारे लिए मायना जिंदगानी बनाया है। और उन मालों में से उनको खिलाते रहो, पहनाते रहो बीवी बच्चों को, माँ बाप को, और उनसे माकुल बात कहते रहो, अच्छे से अच्छे प्यार से बातें करते रहो। और तुम यतीमों को आज़मा लिया करो यहाँ तक कि जो निकाह को पहुँच जाए। यतीम बच्चे होते, फिर अगर उनमें एक को नातमीज़ देखो तो उनके अमवाल उनके हवाले कर दो। यहाँ पर फ़ायदे बहुत से लिखे हुए, अब इसके बारे में बाजू में लिखे तो पढ़ेंगे तो मालूम पड़ जाएगा। और इन अम्बाल को ज़रूरत से जायज़ उठाकर और इस ख्याल से कि ये बालग हो जाएंगे जल्दी जल्दी उठाकर मत खा डालो। और जो शक मुस्तगनी हो सोहा तो अपने को बिल्कुल बचाए। यानी जो यतीम का माल है उसको जल्दी जल्दी उठाकर मत खाना, ये बड़े हो जाएंगे तो वो माल को हम नहीं ले सकते, इसलिए वो बच्चे हैं अभी खा के ख़त्म करेंगे, हमारे माल को छुपा के रखे, ऐसा मत करो। और जो शक मुस्तगनी हो सोहा तो अपने को बिल्कुल बचाए। जो अपने पैसे दहे और बिल्कुल है तो वो यतीम बच्चों का माल को
जमा के रखो, जो बड़े हो जाएंगे उनका हवाले कर दो, ये शुक्रगुजार करेंगे तुम्हारी। और जो शख्स हाजतमंद हो तो मनासब मुक़द्दर से खा ले। अगर कोई ये भी खुद गरीब है, वो यतीम बच्चे हैं, उनको पाल पोष करने में कुछ ज़रूरत पड़ता है तो उनका माल को बरत सकते हैं। कितना? और जो शख्स हाजतमंद हो तो मनासब मुक़द्दर से खा ले। फिर जब उनको माल उनके हवाले करने लगो तो उन पर गुहा भी कर लिया करो। जब वो बच्चे बड़े हो जाएंगे, उनका माल उनको देते हो तो उस टाइम पर गवाह करके उनको हवाले कर दो। और अल्लाह ताला ही हिसाब लेने वाले काफ़ी है। अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। मर्दों के लिए भी हिस्सा है उन चीज़ में जिसको माँ बाप और बहुत नज़दीक के कराबतदार छोड़ जावे, और औरतों के लिए भी हिस्सा है उस चीज़ में से जिसको माँ बाप और बहुत नज़दीक के कराबतदार छोड़ जावे, कोई चीज़ कलील हो या कसीर हो, हिस्सा कता। देखा, मैं बताया ना पहला ही, आजकल क्या कर दिया करते, इस बात को छोड़ दिया। और अल्लाह का क्या हुक्म है? मर्दों के लिए भी हिस्सा है उस चीज़ में से जिसको माँ बाप और बहुत नज़दीक के कराबतदार छोड़ जावे, ये मर्दों के लिए। और औरतों के लिए भी हिस्सा है उस चीज़ में से जिसको माँ बाप और बहुत नज़दीक के कराबतदार छोड़ जावे, कोई चीज़ कलील छोटा हो या कसीर यानी बड़ा हो, हिस्सा कता। ये आयत को हम छोड़कर यहाँ पर क्या किया, ये महर के जगह पर हम लोगों ने कटनम लगा दिया। महर क्या आ गया? लिख लो, लिख लो। अरे भाई, बगैर महर का तुम हाथ नहीं लगा सकते औरत को। जब आदम अलैहिस्सलाम का हवा, दादी माँ हवा का दादा आदम अलैहिस्सलाम का जन्नत में अल्लाह ने निकाह पढ़वा कर दी, तो वहाँ पर महर देने के लिए बोला, तो उस टाइम पर महर कहाँ से आया? नहीं दादा। तो आदम अलैहिस्सलाम को बोले कि आप दरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। देखो, उस टाइम पर आदम अलैहिस्सलाम ने बोले, देखो हमारे तो निकाह हो रहे दादी माँ हवा से, दादा आदम से, हमारे बाद कोई औलाद है ही नहीं, लेकिन ये दरूद किस पर पढ़ा जा रहा है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनके उम्मत पर, आल पर। तो पूछे कि आगे बढ़कर तुमको औलाद होंगे, उसमें से ये हस्तियाँ होंगे जैसा इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जैसा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आपने दोनों अंगूठों को उंगलियों पर देखो, तो उन्होंने दो अंगूठे पर देखे, तो उनके अंदर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के चेहरे उनके ये नाखून पर दिखाई दे। तो उन्होंने अपने औलाद को चूम लिया, जैसा मुद्दू दे दिया बोलते हैं ना, जो कुछ लोग बोलते हैं, देखो आज़ा देते वक्त तो दो उंगलियों को प्यार करते, ऐसा बोल के। क्यों? तो उस टाइम पर आदम अलैहिस्सलाम ने जो महर के जगह पर दरूद शरीफ पढ़ा गया, तो उनके उंगलियों पर उनके बच्चों का जो फ़ोटो देखा तो उन्होंने उनको प्यार किया। समझ गया? अभी अगर इसमें कोई गलती होगा तो मुझे माफ़ी चाहता हूँ, तुमसे भी और अल्लाह से भी। और जब वारिसों में तर्क के तकसीम होने के वक़्त आ मौजूद हो रिश्तेदार दूर के और यतीम और गरीब लोग, तो उनको भी इस तरह में से जिस कदर बालुगों का है कुछ दे दो और उनके साथ खूबी से बात करो। और ऐसे लोगों को डरना चाहिए कि अगर अपने बाद छोटे छोटे बच्चे छोड़ जावे तो उनको फ़िक्र हो। सो उन लोगों को चाहिए कि खुदा ताला से डरे और मौका की बात कहे। समझ गया होगा इसका मानी तो हुबहू है। बिलाशो जो लोग यतीम का माल और बाइस्तखा खाते बरतते हैं और कुछ नहीं अपने शक में आग भर रहे हैं और अनकरीब बस्ती आग में दाखिल होंगे। जो यतीम बच्चे हैं, ये बच्चे हैं बोल के उनका माल उठाकर खाते हैं, तो अल्लाह ताला उनके लिए क्या बोलते हैं? देखो, बिलाशब जो लोग यतीम का माल बाइस्तखा खाते बरतते हैं और कुछ नहीं अपने शक में पेट में आग भर रहे हैं और अनकरीब बस्ती आग में दाखिल होंगे। बचती हुई आग, जैसा कि हवाले में ज़्यादा लकड़ियाँ डाल के आग लगा देंगे तो एकदम आग भटक जाएगी, फट फट के आवाज़ आएगी, यानी उतना दूर तक उसका चिंगारा उड़ेगा,
وہ بولتی بستی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے. یہاں تک سورہ نساء کا پہلا رکوع ختم ہو گیا. یہ معنی میں دوران میں مجھ سے جو بھی غلطی ہے تو میں معافی چاہتا ہوں.